Okay, so let us start with question number 14. A compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter. मतलब eyepiece का focal length आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्टिव का 4 सेंटीमीटर दिया है, और माइक्रोस्कोप में ऐसा ही होता है, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, बट टेलीस्कोप में इसका उल्टा होता है. यू नीड टू नो दिस. कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर if an object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective so that the final image is formed at distance of distinct vision. डीडीवी पे इमेज बना है और डीडीवी की वैल्यू 25 की जगह पे 20 सेंटीमीटर आपको बताया है. यू शुड नो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ये याद होना चाहिए. डू यू रिमेंबर 1 प्लस डी बाय, आपको मैंने बताया था यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक आता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस. तो इफ यू रिमेंबर ये आता है VO by UO and here you have something. What is that something over here? अगर if the final image is formed at DDV 1 plus क्या था यहाँ पे 1 plus D by F, so 1 plus D by F will be there. So you need to know the formula. By the way, do you remember the formula? फॉर्मूला याद था? Yes or no? No. तो फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले. And now, as you can see, you have U0. बताया है क्या? Object is kept at how many centimeter from the objective? 5. You have U0. Then what else do you have? V0. Very good. V0 कहाँ दिया है? I don't see V0. Do you see V0 given? I don't see V0 given. Do you see this? Final image is formed at distance of, yes, but here you need V0. Where is V0? You don't have. तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? You need to remember first of all formula. ये था 1/d by fe, ये पता होना चाहिए. Then U0 पता है, D पता है और fe भी पता है, V0 नहीं पता. V0 मतलब V ऑब्जेक्टिव VO. तो V ऑब्जेक्टिव कैसे फाइंड करते हो? इजी. तो yes, 1 by FO equal to 1 by VO minus या plus? Minus. Okay, right. Then you have 1 by VO equal to 1 by FO plus 1 by UO. Then you will be using sign conventions. Sign convention use करोगे? Using sign conventions. And you should know sign conventions मतलब आपको पता होने चाहिए focal length is taken to be पॉजिटिव. तो 1 by VO ये फाइंड करना, ऐसा कन्वेंशन यूज नहीं होगा, ये प्लस होगा. माइनस ऑफ माइनस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट. 1 by FO. व्हाट इज FO? 4. व्हाट इज VO? UO, सॉरी, 5. तो दिस इज हाउ मच? 5 plus 4 9 by 20, राइट. तो आपको मिल गया VO 20 by 9. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. Is this right? Yes. Is this right? Yes. Sign conventions? Yes. Right? Minus. Right? Good. So that is why I told you to check. If you, this is minus, मतलब ये ऐसा था plus of minus. हाँ. तो एक छोटी सी भी गलती जो है, it can give you wrong answers. So you will have a minus over here. ये minus. 5 minus 4 is 1. 1 by 20. Okay. So VO is in total 1 by 20. Right. So this is 20 centimeter. अब ये मिल गया. तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया. Do you remember this? It is VO by UO 1 plus D by FE. VO is 20. This was 5. 1 plus 20 और FE was 10. So FE was 10. तो यहाँ पे 10 आएगा. तो you will have to write it down. So 4 plus 20 by 10 is 2. 2 plus 1 3. 3 into 4 is 12. Do you see 12? Yes. This is how you are supposed to solve this question.
Okay, next question. All right, so this question is, you have a film projector magnifies a 100 centimeter film strip on a screen. अगर आपको पता होगा, old days, now not now, छोटे छोटे से फिल्म होते थे, strip, then you put a projector behind it and it projects. Okay, तो आपको ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब एरिया ऑफ द फिल्म दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया है 4, आपको पूछा है कि एरिया ऑफ द मैग्निफाइड फिल्म. यू शुड नो एरियल मैग्निफिकेशन. अगर आपको याद होगा, एरियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर, ये पता होना चाहिए. बट एरियल मैग्निफिकेशन इज एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, राइट. तो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब दिस इज 16 into 100, मतलब 1600 centimeter square. So this is how you are supposed to solve this very easy question. Next question. The length of the compound microscope is 14 centimeter. The magnifying power for relaxed eye is 25. If the focal length of eye lens is 5 centimeter, then the object distance for the objective lens will be. Okay, so what is given to you is, आपके पास एक compound microscope का length है. You should remember, you should know, length of a microscope is given by the formula. याद है? VO plus VO plus FE. Why FE? That is right. UE आप बोल रहे हो, जिनको माइक्रोस्कोप याद नहीं. माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. देन व्हाट हैपेंस इज, यू शुड रिमेंबर दिस. आप यहां पे ऑब्जेक्ट को इंटेंशनली यू कीप इट बियॉन्ड f, between f and 2f, because the image produced will be, it will be real, inverted and magnified. So you have something like this, correct image. Then ये हो गया आपका VO, ये था UO, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस. This image formed by objective acts as virtual object for eyepiece. मतलब this is nothing but UE. Length of the tube is VO plus UE, that is correct. Okay, मतलब length of the tube is VO plus UE is not wrong. आगे क्वेश्चन पढ़ो. Magnifying power for relaxed eye is 25. Relaxed eye मतलब infinity पे, मतलब हाईली मैग्निफाइड इमेज बनता है. हाईली मैग्निफाइड इमेज बनने का मतलब आपको पता होना चाहिए. एज आई टोल्ड यू द अदर डे, याद होगा, इट इज लाइक ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड. तो ऐसा होता है. तो इमेज इज वेरी वेरी, मतलब इट इज हाईली मैग्निफाइड, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द ऑब्जेक्ट. वो कब होगा? व्हेन UE इज इक्वल टू FE. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. So length of the tube is VO plus FE, correct? Then length of the tube कितना दिया है? 14. उसके बाद आपको focal length of eye lens दिया है कितना? 5. तो आपको मिल जाएगा VO which is 14 minus 5, that is 9 centimeter. 9 centimeter मिल गया. Good. आपको पूछा है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और आपको मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई 25 दिया है. मैंने अभी भी बताया, रिलैक्स्ड आई मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर यू शुड नाउ नो इज इक्वल टू VO बाय UO D बाय 1 प्लस वो, इट इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV. 1 plus D by FE is when the image is formed at DDV. यहाँ पे रिलैक्स्ड आई मैंने अभी समझा. रिलैक्स्ड आई मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी.
तो वहां पे वो आप v इज इक्वल टू इंफिनिटी डालते हो, देन 1 बाय इंफिनिटी बिकम्स 0. डेरिवेशन याद होना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला याद होना चाहिए. इफ यू डोंट रिमेंबर दिस यू कैन नॉट सॉल्व दिस. व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? 25. व्हाट इज VO? 9. UO तो फाइंड ही करना है आपको, isn't it? Yes. What is D? अभी 25 ले लो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन 25 ही ले लो, because they have not told you. Upon FE, do you know FE? 5. Correct? 5. Cancel, cancel. So UO is 9 by 5. What is 9 by 5? 1.8. Option number 1. Okay. Next question. The diameter of moon is 3.5 into 10 power 3 kilometer, मतलब 3500 kilometer basically, and its distance from Earth is 3.8 into 10 power 5 kilometers, 380,000 kilometers. It is seen through a telescope whose focal length for objective and eye lengths are 4 meter and 10 centimeter. आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है in case of telescope, और eyepiece is smaller, 10 centimeter. 4 meter मतलब 400 centimeter and 10 centimeter respectively. Then the angle subtended by moon on the eye will be approximately how much? So this question is very simple. You know magnifying power of telescope is FO by FE, but you know magnifying power was beta by alpha. So that means you know it is beta by alpha and you are supposed to find out what? आपको find क्या करने के लिए बोला है? Beta. So this is beta by alpha, FO by FE. आपको find करना है beta. तो beta is FO by FE into alpha. But if you remember, हमने बोला था अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और अगर ऑब्जेक्ट को हमने DDV पे रखा है, राइट, करेक्ट, उस केस में जो एंगल बनता है अल्फा, और ये था ऑब्जेक्ट का साइज AB, करेक्ट, राइट. बट दिस वाज द केस ऑफ माइक्रोस्कोप. आर वी टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोप? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीस्कोप. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो? मून को, राइट, बोला है ना मून. तो यू आर लुकिंग एट moon. So if you are looking at moon, let us say this is moon, okay. तो मून जो भी एंगल बनाएगा आपके आई पे या टेलीस्कोप पे, अगर याद होगा, मैंने इसलिए बोला थ्योरी पता होना चाहिए, एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट योर आई, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज द सेम, अल्फा. तो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, आप डू यू रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर? यस. तो पहला चैप्टर अगर आपको याद है तो ये भी आपको याद है. कैसे? आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा. सो यू नो आर्क लेंथ इक्वल टू आर थीटा, राइट. तो आर्क लेंथ यहां पे होगा डायमीटर ऑफ द मून, है ना, ये आर्क हो गया. दिस इज हाउ मच? ये d, ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ये आ गया अल्फा. तो आर्क लेंथ d इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर. तो अल्फा इज d बाय आर, करेक्ट, d बाय आर. यस. तो कैन आई पुट इन दिस फॉर्मूला बीटा इक्वल टू FO बाय FE, और अल्फा अभी अभी आपने ही बताया d by r. D by r. So this is D, not P. Remember, this is D by r. So D by r. What is FO? 4 meter, 400 centimeter. FE was 10 centimeter, and D 3.5 into 10 power 3, and R 3.8 into 10 power 5 power 5. Okay, right, good. So you have to solve this. कैसे सॉल्व करोगे? इजी है, वेरी इजी. ये 4 10 पावर 2 और ये 10 पावर 5 और ये 5 गया इनटू
35/38, right? Good. तो करो इसको सॉल्व. What is so big here is 1 and 9 point something something, 9 point something something, 9.5, 9.5 ऊपर 36, नीचे 9, 3 point something something. You don't have answer. What went wrong? Something went wrong. Power of 10. तो बेसिकली देखो ऐसा है, फॉर्मूला इज करेक्ट क्योंकि आपको पता है आर्क लेंथ इज एंगल इनटू डिस्टेंस. गुड. डी इज दिस, तो दिस इज राइट. ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी करेक्ट है, नो इश्यूज. 3.5 into 10 power 3, that is right. This is 400 centimeter, 4 meter मतलब 400 centimeter, that is right. 10 centimeter, that is also right. Correct. ये सब right है. अब power of 10 कहाँ पे गलती हुई? Yes, 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 yes. 3.5 by 38 है, 3.8 है, 3.8, nothing wrong. Correct. No issues here. एक इशू ये है कि नीचे का 10 मैंने लिखा नहीं. नीचे का 10 लिखना चाहिए था. Yes. So that is the only problem. तो मैं अगर नीचे का 10 लिखता हूं तो 35/95 आएगा, right? लेकिन फिर भी तो आंसर नहीं आ रहा है. Why are you not getting answer? You are actually that is where you wanted to figure it out. You are actually getting answer but in radians. तो ये आपको आंसर मिल गया in radians. Okay, this is in radian. How do you convert from radian to degree? Multiply by 180 by pi. 180 by pi. Okay. अब करो. Who is stopping you? You have answer now. Roughly बता देता हूँ. Roughly 3.14 मतलब 3.5 ले सकता हूँ. 1 जा 10 जा, बराबर. 1 जा and 10 जा. 180 by 90, 2 into 10, 20. Option number 3. तो this is 20 degrees. ये था आपका रेडियन में, ये आपका आंसर आएगा डिग्रीज में, 20 डिग्रीज, राइट. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन. बहुत सिंपल था. यू नो एवरीथिंग. मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज FO by FE, but that is beta by alpha. आपको बीटा से पूछा है, एंगल सबटेंडेड बाय द मून ऑन द आई. ओके, एंगल सबटेंडेड बाय द मून ऑन द आई. और कौन सा मून? डायरेक्ट देख रहे हो क्या आप? नहीं, मतलब आप मून का इमेज देख रहे हो. कौन सा इमेज? फाइनल इमेज. फाइनल इमेज में जो एंगल सबटेंड किया तो क्या हुआ था? बीटा. तो बीटा पूछा है, so beta is FO by FE into alpha, but alpha is d by r, where d is diameter of the moon and r is distance of the moon. ये सब का सब आप मीटर में कर रहे हो, मतलब ऐसा यूनिट्स में कर रहे हो. हाँ, मीटर ही है. कैसे मीटर है? सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर कैंसल, किलोमीटर कैंसल. द एंगल दैट यू गेट इज इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज. तो उसको आप सिर्फ कन्वर्ट करोगे डिग्रीज में. सो यू विल हैव 20 डिग्री. Next question. A person wants a real image of his own 3 times enlarged. Where should he stand in front of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter? So this question you can solve in three different ways. Let us solve in all the methods possible. Method number 1, as you know, method number 1, आपको बोला है कि image size should be 3 times, मतलब m is equal to minus v by u should be equal to 3, मतलब v should be equal to minus 3u. okay, focal radius of curvature डायरेक्टली दिया है और भी अच्छा है. डायरेक्टली radius of curvature है, मतलब फोकल मिल जाए. तो you know f is r by 2, right? तो f is r by 2 मतलब कितना? 15 centimeter. Then you know 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u for a mirror.
ओके देन आपको u फाइंड करना है 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे u को छोड़ के। तो बाय द वे दिस इज माइनस एंड माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज एक ही टाइम बनती है। कहाँ कब बनता है? जब द डिस्टेंस इज बाय द वे ओके। और यहाँ पे 3 टाइम्स एनलार्ज बोला है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऊपर से और एक चीज बोली है रियल इमेज, मतलब समझ जाओ रियल इमेज मतलब टू द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही बनना चाहिए। इन्वर्टेड बनेगा दैट इज अ डिफरेंट केस, बट इट शुड बी हियर ओनली। रियल मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे तो इमेज भी लेफ्ट पे, मतलब इसलिए इमेज का डिस्टेंस आप लोगे नेगेटिव। डू नॉट फॉरगेट दिस। अगर ये भूल गए तो गए। तो 1/v माइनस 1/f, बट v इज 3u, v इज 3u। अभी इधर वापस माइनस मत डाल देना, डोंट हैव टू पुट माइनस अगेन। वहां पे एक बार यूज किया ना तो वापस मत करना, अदरवाइज आई विल टेल यू ऐसा करो, राइट इट दिस वे, mod ऑफ, देन इट इज ओके। ओके सो दिस इज 3u माइनस 1/f। तो you have 1/u इक्वल टू 1/3u। ओके तो यह आएगा 1/u माइनस 1/3u इक्वल टू माइनस 1/f। तो 1/u कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 माइनस 1/f, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा 1/u एज माइनस 3/2f, मतलब u इक्वल टू माइनस 2f/3, मतलब f कितना था 15/3, 1 जा एंड 5 जा माइनस 10 सेंटीमीटर। मेथड नंबर 1 ऑप्शन बी। ओके मेथड नंबर 2, method number 2, if you remember m was f upon f minus u, right? Then using sign convention, well m equal to minus f upon minus f minus u, u के लिए मत सब्स्टिट्यूट करना क्योंकि u तो फाइंड करना है आपको, करेक्ट। m की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि 3 टाइम्स एनलार्ज मतलब मैग्निफिकेशन इज 3। दिस इज माइनस हाउ मच 15 एज यू टोल्ड मी, minus 15 minus u cross multiply, minus 45 minus 3u equal to minus 15 आएगा, तो माइनस साइन होना चाहिए वहां पे। सो इट इज बेसिकली minus 15, correct? Then shift it there, plus 30 मतलब u equal to again minus 10, correct? Right? Method 3 joke, मिरर के अंदर जाके खड़े रहोगे आप, will you go inside mirror and stand there? No. So where your location should be? To the left. To the left मतलब खत्म। मेथड 3 इज द इजीएस्ट। नेगेटिव, अगर एक भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं होता तो कैलकुलेट करना पड़ता, अगर सारे ऑप्शंस पॉजिटिव दिए होते तो कैलकुलेट करना है, अगर सारे ऑप्शन नेगेटिव दिए हैं तो भी कैलकुलेट करना है, लेकिन 4 में से एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, खत्म। ओके all right, so you at the first place in this question, a ray of light is incident on a surface of glass slab at an angle 45, lateral shift produced per unit thickness is the angle of refraction produced will be। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटरल शिफ्ट क्या है। अगर आपको याद होगा आपके पास एक ग्लास स्लैब है, you have a ray of light which is traveling from rarer to denser, it bends towards normal, then at the other surface it bends away from normal। इसका मतलब अगर स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधा जाता, राइट, बट बिकॉज ऑफ द स्लैब, तो आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर स्लैब नहीं होता तो ये रे जाता सीधा, बट बिकॉज स्लैब है तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये जो रे है ये शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ तो इतना शिफ्ट हुआ।
right? So emergent ray is parallel to incident direction and the shift is called as lateral shift denoted by D. तो सबसे पहले आपको lateral shift क्या है वो पता होना चाहिए. Then you should know this is angle of incidence I, this is angle of incidence R, and here ये जो आपने normal draw किया है, I am redrawing this normal. तो अगर मैं इस normal को redraw करता हूँ, you should know this side is thickness of the slab. ये thickness of the slab है. You should know this. Then आपको पता होना चाहिए ये जो आपने लैटरल शिफ्ट डी लिखा है इसका फॉर्मूला आपने बनाया था टी सेक आर साइन ऑफ आई माइनस आर. तो डी बाई टी क्योंकि यहाँ पे बोला है लैटरल शिफ्ट पर यूनिट थिकनेस मतलब डिवाइड बाय थिकनेस, ओके, इज इक्वल टू सेक आर इज 1 बाय कॉस, तो कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर. फिर आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन ऑफ एंगल ए माइनस एंगल बी. दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अगर आपको ये पता होगा तो अगले स्टेप में आप सॉल्व कर पाओगे. आपके पास था डी बाई टी इक्वल टू साइन ऑफ आई माइनस आर, तो साइन आई cos r minus cos I sin r अपॉन नीचे था cos of r, राइट. तो ये आपको मिल जाएगा. इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल गेट इज दिस. अगले स्टेप में आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे स्प्लिटिंग अप ऑफ द टर्म्स, ओके. तो क्या करना, इसको स्प्लिट कर देना, करेक्ट, राइट. तो इससे क्या होगा, ये और ये हो जाएगा कैंसल. d बाई टी की वैल्यू आपको 1 बाय रूट 3 दी है क्वेश्चन में. साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको दिया है कितना 45 माइनस कॉस ऑफ आई मतलब कॉस ऑफ कितना 45. साइन बाय कॉस इज हाउ मच tan ऑफ r, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में tan आ गया, मतलब ऑप्शन में tan था तो आंसर में भी आ जाएगा. दिस इज 1 बाय रूट 2, दिस इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2, राइट. तो अब ये जो 1 बाय रूट 2 है 1 बाय रूट 2 इसको आप कॉमन निकाल सकते हो. तो 1 बाय रूट 3 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 को निकालने है कॉमन 1 माइनस tan r, राइट. सो यू विल हैव, इसको शिफ्ट कर दो, रूट 2 बाय रूट 3 इक्वल टू 1 माइनस tan r, देन यू विल tan r नॉट tan थीटा, यू विल हैव tan r, ओके, tan r. तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan r, शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया 1 माइनस रूट 2 बाय रूट 3, ये r है. सो r इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट 2 बाय रूट 3. ऑप्शन नंबर 4. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. Okay, so that is it for today and that is the end of today's session.